Today we shall discuss a new chapter in class 8, that is linear equation in one variable. This is our second chapter of class 8 mathematics. Today we shall discuss this thing, what is linear equation in one variable. To discuss that, first of all recall some basic concepts of algebra. You know, in class 7 we came to know about two things, that is one is variable and another is non-variable. In mathematics there are two types of quantities. One is called variable and another is called non-variable. The example of variables are x, y, z, etc. And all the numbers are non-variables. These are variables and these are non-variables. Now what does it mean? Variable means those quantities whose values are not fixed. They may be changed further. X in a certain question x may be 2, in another question x may be 3, in a question x may be 5, in another question x may be -5. But look at these numbers. These are numerical numerals. These are fixed. 1 is always 1, 2 is always 2, 3 is always 3, half is always half, 3 by 4 is always 3 by 4. इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं है. That's why we call them variable and these are non-variable. The word variable implies varies. Vary करती है, varies. Variable varies. Non-variable never varies. So they are also called constants. इनको constant भी कहते हैं. So non-variable and constants, variable are those numbers or quantities which varies. These letters in algebra are used to represent or note variables. These represent the variables and all numbers are non-variables. Another thing, algebraic expression. In 7th class we have studied about algebraic expression. What is algebraic expression? Any expression like this where a variable comes or a number. This is an algebraic expression. This x is variable, this 2 is constant or non-variable. We are adding them. This is an algebraic expression. This is also an algebraic expression. This is also an algebraic expression with two variables. Here there are two variables, x and y. X plus y, two variables. So if a variable, non-variable, it is algebraic expression. This is also algebraic expression. This is also an algebraic expression. This is also an algebraic expression. Now, let us start our topic with the word equation. What do you mean by equation? Equation is like a balance. जैसे दुकानदार का तराजू होता है, आप सबने देखा होगा तराजू कैसा होता है. उसमें दो पलड़े होते हैं, दो साइड्स होती हैं. एक तरफ वो वेट रखता है जिससे वो तोलेगा सामान को, और एक तरफ वो सामान को रखता है. इधर उसने 2 किलो का बाट, आम भाषा में बाट कहते हैं, वेट रखा और 2 किलो को आलू को रखा और फिर वो तोलता है. जब वो दोनों बैलेंस बिल्कुल सेम लेवल पे आते हैं तो कहते हैं जो वेट है वो दोनों तरफ से बराबर है ना. ऐसे ही होता है. दैट इज इक्वेशन. इन इक्वेशन देयर इज a sign of equal. This is equal sign. In this side, left side, it is called LHS, left hand side. On other side, it is called right hand side. So this is left hand side is equal to our right hand side. This represents an equation. In algebra, we can write x plus 7 is equal to 3 or is equal to 10. x plus 7 is equal to 10. This is an equation. इसमें इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आया हुआ है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इक्वेशन टू बी एन इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को? बिकॉज यहाँ पर बीच में क्या है, इक्वल का साइन है और इसकी दो साइड्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है. वो क्या बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों आपस में बराबर है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अभी यहाँ पर कुछ वेरिएबल है, कुछ नॉन वेरिएबल है. ये 7 और 10 नॉन वेरिएबल, इनकी वैल्यू पता है हमको, लेकिन इस x की वैल्यू नहीं पता है. तो हमें करना क्या है, इस x की वैल्यू को पता करना है. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? solution of
equation means to find the value of variable। उस इक्वेशन में जो भी क्वांटिटी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकालना इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब हम इसे डिस्कस बाद में करेंगे, अब हम बढ़ते हैं इक्वेशन। सो दिस इज इक्वेशन, इक्वल साइन आया, लेफ्ट हैंड साइड आया और राइट हैंड साइड आया, इट मींस दिस इज एन इक्वेशन। नाउ इन दिस इक्वेशन एज वी told earlier, how many variables are there? There is only one variable, that is x. If I write this equation, then how many variables are there? There are two variables. So this equation represents two variables and this equation is in one variable. यहाँ पर एक ही variable, यहाँ पर दो variable है, x और y, इन दो की वैल्यू में नहीं मालूम। Now in this chapter, in this class, we shall discuss only the equations with one variable like this. This is equation like in one variable. यहाँ पर एक x की variable आया है, तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं, हम टू वेरिएबल वाले इक्वेशन नहीं लेने वाले हैं, इनको हम आगे सीखेंगे 9th में। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन 3y into is equal to 9, 3y is equal to 9. This is an equation in one variable and a variable is y. This is also an equation x square plus 2x plus 1. Here x is coming two times, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, but it doesn't mean that it is an equation with two variables. It is an equation with one variable only because यहाँ पर x ही variable है, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर। दो जगह है कोई दिक्कत नहीं, दो टर्म में है, यहाँ भी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो जगह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वेरिएबल सेम ही है, दोनों जगह x ही है, that's why it is equation with one variable. So all these equations are one variable. Suppose this is an equation, यहाँ पर x है, एक ही वेरिएबल है, this is also equation with one variable. Now we shall introduce the word linear. What is linear equation with one variable? अभी तो आपने सब इक्वेशन देखी और सारी इक्वेशन कैसी हैं? वन वेरिएबल की इक्वेशन है। अब हम आते हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, हमने पहले शुरू किया वेरिएबल से, फिर इक्वेशन पे आए, अब हम आएंगे लिनियर पे। तो लीनियर, व्हाट इज लीनियर? अब देखते हैं। लीनियर वर्ड इज derived from the word line. What is line? You all know line. To meet two points, line. अगर दो पॉइंट को मिला क्या बनेगी? लाइन बनेगी। अब यहाँ पर इस अलजेब्रा में इस प्रिंसिपल का मतलब है, समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल था x और कोई वेरिएबल नहीं है। इस x की पावर कितनी है? 1 वैसे। यहाँ पर एक वेरिएबल था y, इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पर ये वेरिएबल दो बार आया है, एक बार पावर कितनी है? 2, एक बार पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ x इज 2। इस इक्वेशन में तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। तो ये जो पावर या डिग्री है वेरिएबल की हाईएस्ट, ये इनको डिस्क्रिमिनेट करती है, अलग अलग क्लासिफाई करती है इन इक्वेशंस को। अब ध्यान से देखिए, लीनियर का मतलब होता है द पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अगर किसी इक्वेशन में पावर ऑफ वेरिएबल, हम बात कर रहे हैं केवल वन वेरिएबल वाली इक्वेशंस की, तो वहां पर एक ही वेरिएबल हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, कुछ भी, उसकी पावर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। देन वी विल कॉल इट लीनियर इक्वेशन। और अगर पावर, इफ पावर इज मोर देन 1, देन इट विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन। तो क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 होती है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अभी हमें तो ध्यान रखना है कि हमें जितनी भी इक्वेशन आने वाली है वहां पर कहीं पर भी x की पावर 2 नहीं मिलेगा, x की पावर 3 नहीं मिलेगा, x की पावर 4 नहीं मिलने वाला, हमें x की पावर 1 ही मिलने वाला है। सो नाउ वी हैव understood that what is linear equation one variable. There will be one variable only, that is the equation
and the equation is linear because the highest power is 1. Now, what is our next task? Our next task is in exercise 1.1 to solve the linear equation with one variable. अब हमको यहाँ पर linear equation को solve करना सीखना है. मैंने पहले भी कहा, what is the solution of an equation? किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? To find the value of variable in that equation is called the solution for that equation. किसी दी गई इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, जो हमें पता नहीं है, जो अननोन है, उसकी वैल्यू को निकालना is the solution of that equation. In this example of question of exercise 1.1, the equation is 2x minus 3 is equal to 7. There is a sign of equal, so this is equation. This side is called left hand side, and this side is called right hand side. And the equation says that this side is equal to this side. Now we know what is 7, 3, and 2. All are constant, but x is not constant. X is variable. Find the value of x is the solution of this equation. Now how to solve this equation? मैंने क्या बोला, हमें जो पता नहीं है उसको पता करना है और बाकी सबको हमें मालूम है. तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान रखना है, जहां पर जिस साइड हमारा वेरिएबल है उस साइड को देखिए. इसमें से हमें 2 भी हटा देना है, ये 3 भी हटा देना है. हमको ये 2 भी हटाना है, हमको ये 3 भी हटाना है. तो अब इस सपोज हम इस 3 को पहले हटाने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ओमिट दिस 3, इसको हटाते हैं. तो इस 3 को हटाने क्या करूंगा बताइए. अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इस 3 को हटाना है, इसको गैप करना है, इसको 0 बनाना है, इन अदर वे आई कैन से दैट आई हैव टू मेक दिस 0. व्हाट शुड आई डू? ये -3 है, -3 0 कब होगा? -3 0 कब होगा? -3 0 तब होगा जब हम -3 को +3 में जोड़ देंगे. -3 and +3 0. क्या किया मैंने? दिस साइड आई ऐड +3 because if I add 3 and -3 it will become 0. ये 0 बन जाएगा. अब देखिए तराजू के एक पलड़े जो दोनों बराबर है, तराजू के पलड़े अगर आपने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा है, वेट रखा है, एक तरफ आलू रखा है, और अगर आपने यहाँ पर थोड़े से आलू बढ़ा दिए तो उतने वजन का बाट आपको इधर रखना पड़ेगा, तभी आपका तराजू बैलेंस आएगा. या अगर आपने इधर 1 किलो का वजन बढ़ाया तो आपको आलू भी इधर 1 किलो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तराजू बैलेंस ठीक बनेगा उसका, तभी वो बराबर लेवल पे आएंगे. सेम थिंग इज हियर in any equation. If you add or subtract or multiply or divide a quantity in one side, the same thing will be done on the other side. अगर हमने यहाँ +3 किया, क्यों किया? इस 3 को -3 को 0 बनाने के लिए. तो ये +3 किया इधर, तो हमको +3 उधर भी करना पड़ेगा. तो ये भी +3. अब क्या हुआ? इक्वेशन हमारी डिसबैलेंस नहीं हुई, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा. क्या किया मैंने? +3 इधर ऐड किया, +3 इधर ऐड किया. इसको लिखेंगे एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स. दोनों ओर 3 लिखो. उससे हुआ क्या? ये 3 and -3 कैंसिल होकर 0 बन गया. तो हियर आई गॉट 2x and here it's very easy, 7 + 3 10. अब देखिए हमने 3 और -3 हटा दिया. मैंने क्या बोला था? हमें x चाहिए, केवल लेफ्ट हैंड साइड में केवल x चाहिए. तो 2x = 10. अब हमें 2 हटाना है. ये 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ. तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका अपोजिट. ये 3 माइनस हो रहा तो हमने ऐड किया, उल्टा किया. 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे. अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही तो उसे हटाने के लिए उसको डिवाइड कर दो सेम क्वांटिटी से. अगर वो ऐड हो रही तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको ऐड कर दीजिए. यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. इस साइड डिवाइड किया तो इस साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. तो दोनों डिवाइड किया तो क्या होगा? दिस विल बी 2 1 * 2 and this will be 2 1 * 2 and 2 5 * 10. So x into 1, x into 1 is x and here it is 5. So this is the value of x that we have to find. This is our solution of this equation. Solution of an equation is the value of variable. And what was the variable here? X. So x is equal to 5 is the solution of this equation. Now we can check this
कि whether our solution is correct or not. How to check? How to check our solution? इसको हम चेक कैसे करें? It's very easy. You know, if this is true for this equation, then if we put x is equal to 5 on left hand side, we will find right hand side. कहने का मतलब क्या है कि अगर इस x की वैल्यू 5 बिल्कुल सही है तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 5 रखने पर हमको क्या मिलनी चाहिए? राइट हैंड साइड. सो वी विल डू दैट. पुट x is equal to 5 on left hand side of equation. So LHS will be 2 into, and what is x? X is 5 minus 7. 5 2s are 5 minus 3. Minus 3. Okay. 2 into 5 10. Minus 3 is equal to 7, and 7 is equal to the given RHS. So what we found? We found that LHS is equal to RHS. It means our solution is correct. This is the basic thing that you have to know. That अगर आपने कोई solution निकाला है जिसको आप चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पर वो वेरिएबल है वहाँ पर वेरिएबल को रखिए, फिर दोनों साइड को देखिएगा, दोनों साइड से वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर आ रही है तो हमारा सॉल्यूशन ठीक है, नहीं आ रही तो हमारा सॉल्यूशन गलत है. There is another method to solve this equation. We cannot say that this is another method, alternative method. थोड़ा सा कहेंगे इसको मोस्टली यूज करते हैं. वो क्या है? ये माइनस 3 जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 3 को हटाना है, तो विल ट्रांसपोज दिस माइनस 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. आई विल ट्रांसपोज, इसको मैं ले जाऊंगा उठाकर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में. जब मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा? ये देखिए यहाँ से एक क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो रही थी, यानी माइनस में थी, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो ऐड हो जाएगी, प्लस में जाएगी. ध्यान रखिए, ट्रांसपोजिंग अ नेगेटिव क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड और फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव क्वांटिटी. अगर वो नेगेटिव है तो वहां जाके वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर यहाँ माइनस हो रही तो वहां जाके वो प्लस हो जाएगी. तो ये 7, ये माइनस 3 था, तो ये 7 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस 3 जाके बन जाएगा प्लस 3. नाउ इट इज 10, जैसे यहाँ पर मैं मिला था, सेम चीज मिली. अब हमें इसको ले जाना है सिमिलरली उधर राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल x चाहिए, बाकी हम सब उधर ले जाएंगे. तो सेम थिंग इज टू ट्रांसपोज दिस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. वी हैव टू सी दैट द रिलेशन बिटवीन x एंड 2. यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर वो डिवाइड में पहुंच जाएगी, नीचे पहुंचेगी डिनोमिनेटर में, यानी वो डिवाइड करेगी. जानते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड में पहुंच गया, ये माइनस हो रहा था ये प्लस में पहुंच गया. नाउ इट्स वेरी इजी. सो x इज इक्वल टू 4. यहां से भी मैं वही आंसर दूंगा. दिस इज आल्सो अनदर मेथड. बेसिक थिंग इज दैट टू ट्रांसपोज अ क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. वी हैव टू चेक द साइन. अगर वो माइनस में है तो उधर जाके वो प्लस में हो जाएगी, अगर वो प्लस में तो उधर जाके वो माइनस में हो जाएगी, अगर वो इंटू हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड करेगी, और अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में है तो उधर जाकर वो इंटू या मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये बेसिक थिंग आपको ध्यान रखना है. दैट इज हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. नाउ इन एक्सरसाइज 1.1 all questions are similar to the other question that we have solved in our blackboard. You will solve all questions of exercise 1.1. Now we will go to the next exercise, that is called exercise 1.2. In exercise 1.2, what we have to learn? How to apply the concept of linear equation to find the problem of situations like this. This question is from exercise 1.2. Question number 2. And the question is, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. There is a rectangular swimming pool, and the perimeter of that pool is 154 meters. You know what is perimeter? Length of the boundary is called perimeter. Its length is, it means the length of swimming pool is 2 meter more than
its length is 2 meter more than twice its breadth. Twice its breadth. Find the length and the breadth. We have to find the length and the breadth of a rectangular pool. Rectangular pool. The length and the breadth. We don't know the length and breadth. But what do we know? We know the perimeter. What is perimeter? This. 154 meters. We know the perimeter of this rectangular pool, but we don't know length and the breadth. So there are two quantities that we don't know. One is L, one is B. So both are variable for us, and we have to find both. Now remember this thing. अगर हमको दो क्वांटिटी पता करनी है, दो वेरिएबल्स पता करने हैं जो हमें नहीं पता है, तो उनके लिए हमें एटलीस्ट दो इक्वेशन मालूम होनी चाहिए. लेकिन इस कंडीशन में हमको एक ही इक्वेशन मालूम है, बिकॉज हमें उसने एक ही कंडीशन दी है. क्या कंडीशन दी है? कि उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से, जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के दुगने से दो ज्यादा है. 2 more than twice its breadth. This is called condition that will be helpful to draw the equation. अब इक्वेशन कैसे बनानी है? जो चीज हमें नहीं पता है उसको मान लेते हैं एक वेरिएबल में. Let the length is x meter and the breadth is y meter. हम मान लेते हैं कि लेंथ x मीटर है और ब्रेथ की y मीटर है. अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? फ्रॉम द कंडीशन given in question, the condition is the length is, it means x is 2 more than twice its breadth. इसकी breadth के 2 times से. Twice its breadth. What is breadth? Y. So twice of y is 2y, and 2 more than 2y is x. This is the equation that we found from that condition. इस condition से हमने ये equation form करी. This condition says the length x is 2 more वाले plus than twice its breadth. What is twice its breadth? If the breadth is y, then it is 2y. मालूम पड़ गया? Now x is equal to 2 plus 2y. ये हमें मालूम है. x is equal to 2 plus 2y. ये एक equation बनती है. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, और इक्वेशन एक ही है. तो इस एक ही इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता करना पॉसिबल नहीं है. ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है. ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए. अब वो इक्वेशन कैसे मिलेगी? तो वो इस क्वेश्चन में छुपी हुई इक्वेशन है. इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन हमें छुपी हुई है. कहां से मिलेगी इक्वेशन? देखिए ध्यान से. इस क्वेश्चन में हमें इस कंडीशन के अलावा और क्या मालूम था? हमें मालूम था कि एक तो ये चीज मालूम थी, इक्वेशन बनाई, और हमें मालूम है कि इसका पेरीमीटर कितना है? 154 है. ये पेरीमीटर विल बी हेल्पफुल टू फॉर्म द नेक्स्ट इक्वेशन. हाउ? वी नो दैट perimeter of a rectangle is twice of length plus breadth. क्लास 6 में सीखा है आपने. perimeter of rectangular shape is twice of length into breadth. अब क्या करेंगे? perimeter में पता है कितना है? 154. लेंथ पता है कितनी है? हमने x मानी, और b पता है कितनी, हमने y मानी. तो इन सबको रख देंगे यहाँ पर. x को भी रख देंगे, y को भी रख देंगे, और perimeter को भी रख देंगे. सारी वैल्यू देंगे. What is perimeter? It is 154 meter. 2 into x plus y. अब देखिए फिर से हमें दो वेरिएबल मिलेंगे, x और y. अब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा हट जाए और पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आ जाए? Yes, we can do. We will take help of this equation. Now look here. What is x? x is equal to 2 plus 2y. जो x है उसकी वैल्यू 2 plus 2y के बराबर है. बस इस वैल्यू को उठा के वहां रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू को उठा के रख देंगे. तो क्या होगा?
सारा जो इक्वेशन है वो y में आ जाएगा। कैसे रहेगा? व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2 प्लस 2y। तो जहां पर x है यहां लिखेंगे 2 प्लस 2y प्लस y। सिंपल। This x is 2 plus 2y and this y will come here. Now look here. In this equation there is only one variable, that is y. Now it's easy to solve this equation. How? Now the equation that we found, that 154 is equal to 2 into 2 plus 2y plus y. Now to simplify that, 2 into 2 plus, these two terms are like terms. What you know what is like and unlike? आपने पढ़ा है 7th में like term unlike term. 2y plus y is equal to 3y. ये दोनों इसमें ऐड जाएंगे because they both are like term. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. It means हमको y की वैल्यू पता करनी है. तो बारी बारी सब जितने भी नोन क्वांटिटीज हैं, कांस्टेंट्स हैं, यानी कि नॉन वेरिएबल्स हैं, इनको यहाँ से इधर ले आते हैं. ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटा देकर क्या करेंगे? 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे. In other words, we can say that I will transpose this 2 here, and when this 2 from right hand side, this 2, not this 2, if I took this 2 from right hand side to left hand side, it will come here and denominator. यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो जाएगा. ठीक, तो ये हो जाएगा 2 plus 3y. And what does it gives? It gives 2 7 14, 1 2 7 14. So 77 is equal to 2 plus 3y. मिल गया. Now we have to find again the value of 5. So now I will transpose this 2 from the right hand side to left hand side. यहाँ पर एक क्वांटिटी प्लस में है, साइन कौन सा लेना है? जो नंबर के आगे आता है. यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस. ध्यान रखिए, इस 2 के बाद वाला नहीं, 2 से पहले वाला साइन लेना है, जो पहले आया. यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब होता है प्लस में. तो ये प्लस हुआ तो इधर क्या होगा? माइनस इज इक्वल टू 3y. 75 is equal to 3y. 77 minus 2 is equal to 75. Again we have to find the value of y. So what will be y? 75 upon 3, because 3 is multiplied with y. जब 3 को इधर लाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, is equal to y. This will gives 25. So y is equal to 25. Y is equal to 25. ये है हमारी y की वैल्यू. What is y? Breadth. What is y? Breadth. Now we have to find the length also. So how do we find the length? From this equation. We put the value of y in this equation and we will find the value of x. ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया. Putting the value of y in equation 1. X is equal to 2 plus 2 into y. It means 2 plus 2 into 25. It means 52. So x is equal to 52. Y is equal to 25 meters. This is length and this is breadth. This is our final answer. This is our final answer. Now we got the answer. The length is 52 meters and the breadth is 25 meters. Now again I can check my answer in this equation. In this question, मैं अपने आंसर को चेक कर सकता हूँ. कैसे? Because I know the perimeter. मुझे क्या मालूम है? Perimeter मालूम है. So with this length and breadth, if I find same perimeter, then answer is same. तो length अगर हम ले लें 52 meters और b ले लें 25 meters and find the perimeter. So p is equal to 2 into l plus b. Put the value of l and b. 52 plus 25. 5 plus 2 7. 5 plus 2 7. And this is equal to 154 meters. Same. The same given value of perimeter is found here. जो मैं दिया था वो हमने यहाँ निकाल लिया. It means our answers are correct. That is how we can check our answers. So this is the application part of the linear equation one variable. This question is from exercise 1.2. We will try to solve more questions from exercise 1.2
Before exercise 1.2, there are so many examples that are given in textbook. Look at these examples, try to understand them also. Okay students, that's all for today. Now you will solve exercise 2.1 and 2.2. Before 2.2, there are so many examples in your textbook. Just look at them, try to understand them. If you find any difficulty to solve any question of these exercises, you can ask me.